پاکستان نے صدر ٹرمپ کی غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت باضابطہ طور پر قبول کر لی۔ بین الاقوامی فریم ورک سے غزہ میں مستقل فائر بندی کے قیام کی امید کا اظہار۔ جنگ سے تباہ علاقے میں انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی اور تعمیر نو میں مثبت پیش رفت کی خواہش۔ فلسطینی عوام کی سیاسی، سفارتی اور انسانی بنیادوں پر حمایت جاری رکھیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان۔ غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کا معاہدہ کل ڈیووس میں ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں قائم بورڈ میں ترکی، متحدہ عرب امارات، بحرین، آذربائیجان اور مصر سمیت کئی ممالک شمولیت کی دعوت قبول کر چکے۔ غزہ پیس بورڈ کو مسترد کرنے والا اسرائیل بھی شمولیت پر راضی۔ ڈیووس عالمی اقتصادی فورم میں وزیر اعظم نے پاکستان پویلین کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان مشکل حالات سے نکل کر معاشی استحکام کی جانب گامزن۔ مہنگائی اور شرح سود کم، برآمدات پر مبنی ترقی ہدف قرار۔ ریونیو کلیکشن سسٹم مکمل ڈیجیٹائز کر دیا۔ معدنیات کے شعبے میں بڑی سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں قدرتی وسائل کی بدولت ترقی کے مواقع کھل گئے۔ شہباز شریف کا افتتاحی تقریب سے خطاب۔ ڈیووس میں وزیر اعظم کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات۔ پاکستان کے میکرو اکنامک اشاریوں میں بہتری اور ادارہ جاتی اصلاحات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ مالیاتی نظم و ضبط، محصولات کو متحرک کرنے اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کا پاکستان کے اصلاحاتی کاوشوں کا اعتراف۔ ڈیووس میں وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطینی ہم منصب کی ملاقات۔ محمد مصطفیٰ خود چل کر شہباز شریف کے پاس آئے۔ فلسطینی عوام کی مستقل حمایت پر اظہار تشکر۔ وزیر خزانہ کی ڈیووس میں صدر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے مہنگائی میں کمی اور معاشی استحکام میں پیش رفت پر آگاہ کیا۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور صاف توانائی کے فروغ پر پاکستان اور اے ڈی بی کا اتفاق۔ وزیر خزانہ کی کویتی ہم منصب سے ملاقات۔ ڈیووس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈین ہم منصب انیتا آنند سے ملاقات۔ معاشی اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پاک کینیڈا تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ They have a choice. You can say yes and we will be very appreciative, or you can say no and we will remember. اپنی حفاظت کے لیے برف کا بس ایک ٹکڑا چاہیے۔ گرین لینڈ پر یورپ ہاں کرے یا نہ، جواب امریکہ کو یاد رہے گا۔ طاقت استعمال کی تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیووس فورم سے خطاب میں نیٹو کو وارننگ۔ یہ بھی بتا دیا کہ جنگ عظیم دوم میں گرین لینڈ کو بچا کر ڈنمارک کے حوالے کرنا بے وقوفی تھی۔ ڈنمارک ناشکری کر رہا ہے۔ نیٹو کے لیے جو کچھ بھی کیا بدلہ بہت کم ملتا ہے۔ امریکہ گرین لینڈ کو خریدنا چاہتا ہے، نیٹو اسے اپنے لیے خطرہ نہ سمجھے۔ یورپ سے پیار ہے مگر یورپ صحیح راستے پر نہیں چل رہا۔ تارکین وطن کے باعث یورپ میں کچھ مقامات ناقابل شناخت ہو گئے۔ صدر ٹرمپ کا ڈیووس فورم سے خطاب میں یورپی ملکوں کو بھی امریکہ کی طرح اصلاحات کا مشورہ دے دیا۔ یورپی ملکوں کو جتلا دیا نیٹو ضرورت پڑنے پر امریکہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ کینیڈا امریکہ کی وجہ سے قائم ہے۔ سوئٹزرلینڈ والے امریکہ میں گھڑیاں بیچ کر اربوں ڈالر کماتے ہیں۔ 30% ٹیرف لگایا، 70% بھی لگا سکتا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ کہا پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاک بھارت جنگ نہ رکتی تو 10 سے 20 ملین لوگ مارے جاتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آپ نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ کراچی میں جل کر کھنڈر بنے گل پلازہ سے مزید 25 سے 30 افراد کی باقیات ملی۔ میزنائن فلور پر انسانی باقیات کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ملے۔ زیادہ تر لاشیں آگ میں محصور ہو کر آڈیو نوٹس بھیجنے والے افراد کی ہونے کا شبہ۔ مزید لاپتہ افراد کی تھرمل کیمروں کے ذریعے تلاش۔ عمارت سے 4 روز کے دوران 31 لاشیں پہلے ہی نکالی جا چکیں۔ اب تک صرف 11 کی شناخت ہو سکی۔
वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा से मजीद लाशें मिलने पर गहरे अफसोस का इजहार। मलबा हटाने का काम रोक कर मैयतें फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत। इंसानी जान का कोई नैमुल बदल नहीं, लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, मुराद अली शाह का पैगाम। गुल प्लाजा में खतरनाक आग और मलबे के दबाव से पड़ोस का रंपा प्लाजा भी शदीद मुतासिर। फ्लड्स पर दबाव के बाद प्लाजा सील कर दिया गया। भारी भरकम जैक लगाकर इमारत को सीधा करने की कोशिश। रंपा प्लाजा के मुस्तकबिल का फैसला SBCA की रिपोर्ट की रोशनी में होगा। DC साउथ जावेद नबी खोसो की गुफ्तगू। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो रंपा प्लाजा के बिल्कुल लकब में है। हम नहीं चाहते कि कोई और रिस्क फैक्टर क्रिएट हो और इतनी बड़ी बिल्डिंग को भी कोई रिस्क हो, और इंसानी जानें इन्वॉल्व हैं। गुल प्लाजा में आग तेजी से क्यों फैली? बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम का मुसलसल दूसरे रोज भी हादसे के मकाम का दौरा। किसी तरह के सैंपल्स हासिल नहीं किए। मलबे के तरफ मौजूद रहकर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। किसी भी इदारे की तरफ से यहाँ तखरीबकारी के शुबे की शिकायत नहीं मिली। इंचार्ज BDS की गुफ्तगू। सानिह गुल प्लाजा की तहकीकात में तेजी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कमिश्नर कराची को 7 फाइलें पेश कर दी। अदालत में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की 3 फाइलें भी शामिल। खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात से मुताल्लिक दस्तावेज़ात भी रिकॉर्ड का हिस्सा। सारे गुल प्लाजा के बाद साइंस सरकार की फुर्तियां। बड़ी कमर्शियल इमारतों के इंश्योरेंस के लिए इक़दाम का फैसला। इमारतों की इंश्योरेंस होगी तो बाकायदा इंस्पेक्शन होती रहेगी। वज़ीर आला सिंध का वफाकी वज़ीर जाम कमाल से गुफ्तगू। फसलों की इंश्योरेंस भी जरूरी करार। कराची में डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने मुख्तलिफ इलाकों की ज़ेर तामीर 6 इमारतें सील कर दी। हंगामी हालात में इनखला के रास्ते नहीं बनाए गए, ना ही ज़ेर तामीर इमारतों में फायर फाइटिंग के आलात नस्ब किए गए। मजमूई तौर पर 48 ज़ेर तामीर इमारतों का काम रुकवा दिया गया। पहले फेज में ज़ेर तामीर इमारतों का मुआयना किया जाएगा। कराची भर की इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम 3 दिन में नस्ब करने का अल्टीमेटम नाकाबिले कबूल। इमारतों की फहरिस्त में सिर्फ बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स नहीं, कई इमारतें 30 से 40% पुरानी हैं। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दी। 7 लाख अफराद को घर की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स शहर शहर गांव गांव सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज का झंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमराज़े कल्ब लेबॉर्ट्री का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 अजला में तकसीम करने की मंजूरी दे दी। मुतालिका महकमों को तैयारी मुकम्मल करने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर्स पुलिस और म्यूनसिपल निज़ाम अलग हो जाएगा। चेयरमैन PTI का हुकूमत से दोनों हाथ मिलाने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया कि एक हाथ मिलाना और दूसरे से मुक्के मारने का सिलसिला नहीं चल सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने PTI को जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। लाहौर में गंदम की कीमत में इजाफा। 15 किलो आटे का थैला 1500 से बढ़कर 1850 रुपए का हो गया। तंदूर मालिकान का रोटी महंगी करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2220 रुपए मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुताबिक रियायती कीमत पर 1 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम रिलीज कर दी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने पंजाब हुकूमत की पॉलिसी को गंदम के नर्ख बढ़ने का सबब करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में गटर के ढक्कन लगाने से पहले और बाद की तस्वीरें शेयर कर दी। पोस्टर पर सुहेल आफरीदी की 2 मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई हैं। वज़ीर दाखिला और वज़ीर दाखिला बराए मुमलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मुफ्ती नक़वी ने वफ़द के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। मन्नू में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान झड़प के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया।
जाफर एक्सप्रेस में जदीद सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। वफाकी वज़ीर रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। सिक्योरिटी इंतजामात पर पाक फौज और एफसी की काविशों को सराहा। घोटकी के कच्चे रोंती में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, 4 मुबैना डाकू हलाक, 20 ने हथियार डाल दिए। रहीम यार खान के कच्चे में भी पुलिस की बड़ी कामयाबी, खौफ और दहशत की अलामत समझे जाने वाले 2 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। न्यू कराची में मुल्जिमान की फैक्ट्री में घुसकर 15 लाख भत्ता वसूली की कोशिश। मालिक के कॉल पर रेंजर्स का एक्शन, फैक्ट्री को घेरे में लेकर 4 मुबैना भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। असलहा, कार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन्स बरामद। साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। न्यू कराची में मुल्तान की फैक्ट्री, मंडी बहाउद्दीन में 17 साल लड़की का कत्ल, मां और खाला समेत 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्तान में डॉक्टर्स का कारनामा, सर्जरी करके मरीजा के पेट से 18.5 किलो वजनी रसोली निकाल ली। पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबले रुकवाने की दरखास्त की समाअत। पंजाब में शहरियों को सीसीडी गाजर मूली की तरह काट रही है। वकील मियां दाऊद एडवोकेट का इल्जाम, सिर्फ खदशात की बुनियाद पर कोई हुक्म जारी नहीं किया जा सकता। कोई मुतासरा फरीक आएगा तो देख लेंगे। जस्टिस अभर गुल के रिमार्क्स। समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। बाजोड़ में पोस्ट की काश के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया ने 268 एकड़ पर पोस्ट की काश तलब कर दी। इस्लामाबाद में वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान मादनियात और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरानी क़यादत ने ट्रंप के कत्ल की साजिश तैयार कर दी। इस्राएली अखबार का दावा, अमरीकी सदर का सख्त रद्द-ए-अमल लिख कर दे दिया। ऐसा कुछ हुआ तो पूरे ईरान को उड़ा कर रख दिया जाएगा। सफाए हस्ती से मिटा देंगे ट्रंप की धमकी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई पर हमला, पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग तस्वुर होगा। ईरान की कौमी सलामती पार्लिमानी कमीशन का ऐलान। ट्रंप का तैयारा डिवोर्स की फजा में पहुंचते ही पहाड़ पर लिखा ट्रंप घर वापस जाओ नजर आ गया। अमरीकी सदर की पॉलिसीज के खिलाफ नारा बर्फ पर लिखा पाया गया। रूस के बमबार तैयारों की बहरे जापान पर परवाजें। एटमी हमले की सलाहियत रखने वाले TU-95MS की परवाज 11 घंटे तक जारी रही। भारतीय फजाइया का तरबती तैयारा इलाहाबाद में गिरकर तबाह, पायलट पैराशूट से जान बचाने में कामयाब। सोना फी तोला 12,700 रुपए महंगा। मुल्क में पहली बार सोने की कीमत 5,06,362 रुपए की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। ICC ने बांग्लादेश के मैच भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त रद्द कर दी। वर्ल्ड कप भारत ही में कराने का शेड्यूल बरकरार रखने का फैसला। बांग्लादेश ने भारत पहुंचकर मैच ना खेला तो 2 दिन में नई टीम शामिल करनी जाएगी। ICC ने अल्टीमेटम भी दे दिया। काउंसिल इजलास में सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत की। मैचेस भारत से पाकिस्तान मुंतकिल करने की पेशकश। लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए कौमी टीम की प्रैक्टिस। हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। साबिक ऑस्ट्रेलियाई लेजेंडरी प्लेयर मार्क वॉ ने बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स के स्क्वाड से ड्रॉप करने का मशवरा दे दिया। बहैसियत ओपनर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। टूर्नामेंट जीतना है तो सिडनी सिक्सर्स को नया ओपनर लाना होगा। सियालकोट के मालिकान ने फैंस की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी टीम का नाम रख लिया। नई फ्रेंचाइज को सियालकोट स्टैलियंस का नाम दे दिया। लोगो भी जारी कर दिया गया।
मोहम्मद आसिफ ने राना इरफान को हराकर गोल्डन जुबली नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। बेस्ट ऑफ 11 फ्रेम के फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने 6-3 से फतह। और जराइम की दुनिया को छोड़ना लड़की के लिए अजाब बन गया। अमरीकी थ्रिलर फिल्म इन कोल्ड लाइट 26 जनवरी को रिलीज होगी।